My dear students, how are you all? I hope you will find, and I welcome you to the science class for class 7. And today we are going to learn the remaining thing of chapter 3, that is a fiber to fabrics. So without wasting time, let's get started. Okay, so in previous class we learned about the fiber, wool. Okay, wool. Okay, so before wool we learned that the fiber we get it from animal as well as from plant. Okay, so the from plant we get fiber like cotton, like jute, and then from animal we get like wool and the silk. Okay, yes. So about wool we studied in previous class, and about silk we will study today's class. Okay, yes. So we learned about the wool bearing animals. Okay, like camel, then yak, then rabbit, especially the angora rabbit. Okay, yes. Then we will angora goat, then angora sheep. Okay, yes. So these are some basic animals, okay, which are used, which bear wool. Okay, then we saw the properties of wool, like wool have the structure of wool is scaly, then it is crimpy, or it is as crimps. Scaly means its surface is not plain, its surface is has roughness. Okay, yes, just like the stem of coconut tree. Okay, yes. And crimps me it means the wavy structure. Okay, so the wool are not straight. Okay, they are wavy. Okay, yes. Then other properties are like tensile strength means if we will pull the wool, it will not break easily. Okay, then we saw that it has elasticity. Okay, so if we bend it, okay, so it will again come to its original position. Okay, yes. Then we saw that it is light weight. Okay, then it trap lots amount of air. Okay, it traps lot amount of air. Okay, yes. Then it absorb lots amount of water. Okay, yes. Then rearing and breeding of sheep. So we saw that most of the sheep are reared in hilly regions like JNK, Jammu Kashmir, then Himachal Pradesh, then Uttarakhand. Okay, then some part of Rajasthan, Punjab. Okay, Haryana. Okay, yes. Then we saw the processing of fleece. Okay, so in processing of fleece we saw that the first of all the fleece are removed from the body of sheep, so that is called shearing. Okay, then after that it is being washed. Okay, and then it is being carded and combed and straightened. Okay, yes. And then it is make a then it is straightened and twisted to make yarn or fiber. Okay, yes. Then we saw the wool manufacturing. Okay, so in wool manufacturing we learned the shearing. Okay, we learned the shearing means removal of fleece from the body of sheep. Then sorting means separating the separating the wool. Okay, suppose you have this wool. Okay, separating it based on the color. Okay, like white color wool together, then black color wool together, then short wool together, then long wool together. Okay, yes. So this is called sorting. Then scoring is like washing wool is called scoring. Okay,
so it remove if any dirt and oil and okay, yes, dust. Okay, so yes, this help in, that is called the scoring. Okay, then carding is usually done with the machines. Okay, so you have two roller. Okay, okay, so this wool is going to be passed between these two roller. Okay, yes, then it is being stretched and this is being rolled. Okay, and then the fiber which we get, that is called the web. Okay, yes, and then this web is going to be twist and spoon. Okay, spin. Okay, we twist it. Okay, and then we dye it. Okay, then we dye it. Okay, it is dyed. Okay, means we can color it. Okay, yes, then the fiber which is made from it, it is called tweed. Okay, so from this fiber, no, whatever cloth is being made, that is called the tweed. Okay, and then worsted is another type of cloth which is more smooth, and tweed are more rough. Okay, yes, मतलब कि जो भी पहले हम लोगों ने बॉडी शीप के बॉडी से जो फ्लीस निकाला उसको हम लोगों ने शेयरिंग बोला। फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किए, उसके लेंथ के बेस पे, उसके कलर के बेस पे उसको हम लोगों ने शॉर्टिंग बोला। देन उसको हम लोगों ने वॉश किया। वॉश क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी ऑयल और प्लस डस्ट और डर्ट रहता है, उसको रिमूव करने के लिए, तो उसको हम लोगों ने स्कोरिंग बोला। फिर उसके बाद उसको डाई किए, उसको सुखाए और उसके बाद उसको मशीन में डाले और उसको ये कि उसको उसको पास किया। फिर वो जो हमें फाइबर मिला उसको हम लोगों ने वेब कहा। ओके, यस, देन ये वेब को हम लोगों ने स्पिन किया, इसको ट्विस्ट किया और वो ट्विस्ट करके फिर उसको हम लोग कलर किए और फिर वो कलर करके उससे जो फैब्रिक है वो बना जाता है। और जो उससे फैब्रिक बना जाता है वो काफ़ी रफ़ होता है। ओके, सो उसमें कुछ स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स होते हैं, जैसे आपने स्वेटर में देखा होगा। ठीक है, सो ये जब ये थ्रेड्स इसको भी निकाल दिया जाता है तो ये काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो जिसमें से नहीं निकाला जाता है उसको बोलते हैं ट्विड, और जिसमें से निकाल दिया जाता है उसको बोलते हैं वॉस्टेड। ओके, यस, सो इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट सिल्क। ओके, silk and animal fiber. Okay, then okay, so we'll study about early silk history, about history how silk evolved, then life history of silkworm, then sericulture. Okay, then processing of silk fiber from silk cocoon. Okay, then processing of silk thread from silk fiber, then wild silk, and then uses of silk. Okay, yes. Okay, so see these pictures. These will have some uses. Okay, yes. Okay, so here we go. First introduction. So silk is a natural protein fiber. Okay, and it is produced from the covering of silkworm larva. Okay, so okay, and it is not only the just silkworm. There are many some insects which used to make cocoon. Okay, but they are not useful, but only few are useful. Okay, yes. Spider silk spider silk are used in crosshair of telescope and optical instrument. Okay, like this. Okay, so how? So these are like this is instrument. Okay, in which or in many guns or telescope, this kind of thing is used, and this is actually made up of this spider silk. Okay, yes. Then fiber reflect light. Okay, yes, and that is why it has a shimmering effect. You can see this. Okay,
it reflect light, it shine, okay, and that is why the silk has a more demand in the market, okay. Then shimmering appearance, it make it a very expensive, okay, it make it very demanding, okay. Yes, okay. Yes, so you can see here, yes, again, so these are some insect which have made their cocoon, okay. Yes, like this, like this, like this, like this, okay. Yes, so देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इंसेक्ट जो हैं अलग अलग तरीके के ककून्स बनाया है। ककून एक्चुअली क्या होता है, वो उनके लिए रहने के लिए प्लेस वो लोग एक्चुअली बनाते हैं, अपने लिए एक सेफ प्लेस बनाते हैं, ओके। सो ये एक स्टिकी सब्सटेंस से ये बनाते हैं अपने आसपास और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे इसका ये देखिए, ओके, यस, नाइस, ओके, okay, yes. Then early history of silk, okay. So silk was discovered and developed in China, okay. It was first discovered in China and it was developed there around 300 BC, okay. Yes, so there is a Chinese history, okay. So Chinese history कुछ इस तरह से है कि एक एम्परर थे और उनकी इम्प्रेस थी, ओके, यस। सो ये इम्परर का नाम था हुआंग टी, ओके, एंड इम्प्रेस का नाम था सी लुंग ची, ओके। सो क्या हुआ, इनके गार्डन में मलबरी का पेड़ था, तो इसकी लीव्स जो थी वो डैमेज हो रही थी, वो गिर रही थी, वो कुछ कीट इंसेक्ट्स उसको खा रहे थे। तो इन्होंने अपने मिसेस को कहा कि ज़रा देखिए व्हाट इज़ द इशू विद दिस, ओके, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ में, क्यों ये ख़राब हो रहा है, ओके। ये सो ये जब भी वहाँ पे गई तो मॉर्निंग का समय था, ये अपने हाथों में कप ली थी चाय का, ओके। सो ये जब ये यहाँ पे गई, ओके, सो इन्होंने देखा कि कुछ वाइट कलर के कुछ इंसेक्ट हैं जो इनको खा रहे हैं और उनके वो अपने अराउंड वाइट ककून्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे स्टिकी है सब्सटेंस है, ओके, यस। सो तभी इनके हाथ में जो कप था, ये कप में एक ककून जो गिर गया इसमें, ठीक है, यस। सो जब ये ककून गिर गया तो उसमें से सिंस ककून जो होता है वो ऐसे राउंड होता है, ठीक है, यस। सो वो ककून में से एक जो फिलामेंट, एक थ्रेड है वो निकल गया, ओके, जब भी वो कप में गिरा, ठीक है, तो ऐसे वो निकल गया। तो ये जो इनका नाम था सी लुंगची, इनको पता चल गया कि ये एक थ्रेड से मिल के बना हुआ है और इसको हम लोग अनवेव कर सकते हैं, इसको हम लोग एक सिंगल ऐसे बना सकते हैं और इससे फिर हम लोग कुछ दूसरा चीज़ कपड़े या अलग मटेरियल्स बना सकते हैं, ओके, यस। सो इस तरह से इसका डिस्कवरी हुआ सिल्क का, ओके। बट चाइना बहुत चालाक था, वो दूसरे को नहीं बताना चाहता था, वो अपने पास ही ये टेक्निक को रखना चाहता था और उसने रखा भी काफ़ी दिनों तक। 3000 BC से 300 AD तक उसने ये सीक्रेट अपने पास रखा, ओके। और बाकी लोगों को नहीं मालूम था कि क्या चीज़ ये कहाँ से इतने अच्छे कपड़े बना रहा है चाइना, ओके, यस, ओके। Then yes, the secret to the world, it was till 300 AD, okay, yes. Then it came to known by Japan, then India, then Europe, okay, yes. So these country afterward they came to know about this silk, okay, yes. इनको पता चल गया धीरे धीरे आखिर कब तक छुपाए रखता था चाइना, okay, yes. Then later it is spread to the Sicily, okay, it is a part of Italy, okay, then Spain, okay, yes. Then by 12th and 13th century Italy became the silk center in West, okay. I will show you map, okay. Then later France also it developed many industries and a large scale production of silk increased, okay, in France also, and it gave a tough competition, ओके। अब ये भी इसने भी डेवलप कर लिया और ये दोनों के बीच में कंपटीशन चलने लगा, इटली और
फ्रांस के बीच में। ओके, सो फ्रांस में एक शहर है, सिटी है जिसका नाम है लेओन्स। ओके, वहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और वो आज के डेट में भी फेमस है, आज की डेट में भी वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। बट ये जो सिल्क प्रोडक्शन है, इट इज़ नॉट फ्लरिश इन इंग्लैंड एंड USA बिकॉज द क्लाइमेट इज़ नॉट फेवरेबल, ओके, देयर इन USA एंड इंग्लैंड। ओके, yes, so I will show you some map. Okay, yes, so you can see here, this is our country, this is China, okay, and this is Japan. Okay, so China में यहाँ पे पहले सिल्क का प्रोडक्शन डिस्कवरी हुआ, फिर धीरे धीरे जापान को पता चला, फिर इंडिया को पता चला, फिर यूरोप को पता चल गया, और यूरोप में यहाँ पे है इटली। सो इटली में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ओके, देन यहाँ पे स्पेन, तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। ओके, लेकिन ये जो यूके इंग्लैंड है, इसमें नहीं हुआ प्रोडक्शन, और ना ही अमेरिका में। ठीक है, यस, सो इसके हेल्प से यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर। ओके, यस, सो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ओके, जो था वो हिस्ट्री थी कि कैसे सिल्क हुआ, डिस्कवरी हुआ, और यहाँ पे है कि सिल्क मॉथ जो सिल्क वॉर्म है वो कैसे होता है। ओके, यस, सो द फीमेल सिल्क मॉथ विच आर एक्चुअली larger in size than the male silkworm. Okay, yes, these female silk they lays many hundreds of one female silk moth lays hundreds of eggs. Okay, hundreds of eggs. So you can imagine if there will be 100 moth, then how much of eggs will be there. Okay, yes, so these okay, so where they hatch their where they lay their egg, so they lay their egg on the lower side of leaves, fresh leaves of mulberry plant. Okay, so the lower side of these leaves they lay their eggs. Okay, yes, okay, then they after some time they hatch their egg. Okay, means उसमें से जो भी अंडा है उसमें से एक नया वर्म निकलता है, नया वर्म का बच्चा निकलता है, उसको नाम दिया जाता है लार्वा। ओके, यस, सो लार्वा को ही और बोला जाता है सिल्क वर्म और कैटरपिलर। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है। ओके, सो पहले एग था, एग में से जब ये वो निकला तो उसको नाम दिया गया कैटरपिलर और लार्वा, और जब ये छोटा है तो उसको नाम दिया जाता है लार्वा। ओके, सिल्क वर्म एंड कैटरपिलर। ओके, यस, then since it is on leaf, okay, so it leaves it feed on leaf. Okay, it eat the leaf. Okay, yes, so they eat mulberry leaves for 4 to 6 months. Okay, I mean it means 1 से 1.5 महीने तक वो लोग जो ये कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो पत्तियों को खाते हैं, जिसकी वजह से वो हुआंगती जो राजा था वो परेशान हो गया था। ओके, यस, okay, then after some time when they grow in size little, then they are called pupa. Okay, okay, yes, and then after growing after growing they stop eating. Okay, so they stop eating the mulberry leaves. Okay, and they weave a net. Okay, around themselves. Okay, अभी ये जो है इसके बोलता है कि अभी हम बहुत खाना खा लिए, अब कुछ घर बनाया जाए अपने लिए। ओके, सो ये क्या करता है कि अपना जो अपने मुंह से कुछ एक फाइन जेट ऑफ प्रोटीन होता है वो निकालता है, और अपने जो मुंह को ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता है, और ऐसे ऐसे करते करते वो एक अपना घर बना लेता है। ओके, यस, और उसको बोला जाता है ककून। ओके, सो ये जो प्रोटीन होता है, ये सिंस जब भी वो सीक्रेट होता है तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है वो तुरंत हार्ड हो जाता है। जैसे कि अगर आपने ग्लू कुछ समय के लिए अगर छोड़ दें बाहर, तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है आफ्टर सम टाइम, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन इसके लिए समय उतना नहीं लगता, ये काफ़ी तुरंत ही हो जाता है। ओके, यस, सो ये जो कवर बना है, सो दिस caterpillar cover itself with silk fiber. ये silk fiber है actually. Okay, so this silk fiber covering around the caterpillar is known as cocoon. Okay, yes, then next, sericulture. Okay, so the sericulture is the science of raising silkworm so as to obtain silk cocoon.
इज कॉल्ड सिल्क सेरिकल्चर। ओके, तो यहाँ पे हमने जो लास्ट सेक्शन में देखा था, यहाँ पे ये जो हो रहा था ये नेचुरली हो रहा था, सॉरी, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी ये नेचुरली हो रही थी। इसी चीज़ को जो हम ह्यूमन हैं अपने बेनिफिट के लिए इसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। ओके, इनको पालते हैं और ये जो सिल्क ककून है इसको बनाते हैं और इसी को बोलते हैं सेरीकल्चर। ओके, सो यहाँ पे जो हो रहा था नेचुरली, वहाँ पे हम आर्टिफिशियली इनको पालते हैं और इनको इंक्रीज करते हैं। ओके, यस। सो क्या क्या प्रोसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस हम कुछ मेनी एग्स को कलेक्ट किया जाता है। ओके, यस, मेनी एग्स को कलेक्ट किया जाता है, देन उनको फ्रेश प्लेस पे और हम बोल सकते हैं कपड़े पे उनको रखा जाता है। ओके, ओके, यस। एंड आफ्टर सम टाइम जब वो उसमें से हैच हो जाता है, जो एग होता है वो हैच हो जाता है, मतलब उसके अंदर से जो लार्वा निकल जाता है, जो कैटरपिलर निकल जाता है, तो उस पर जो फ्रेश मलबरी की लीव्स है वो उनके यहाँ पे रख दी जाती हैं, जिस पे वो लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये इनको फेड किया जाता है, इनको खाना ये दिया जाता है, पत्ती दिया जाता है खाने के लिए। ये 1-2 महीने तक इसको खाते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनको बोला जाता है प्यूपा। ओके, जब ये बड़े हो जाते हैं, प्यूपा बन जाते हैं, तो इनके यहाँ पे इनका समय हो जाता है अपना घर बनाने के लिए। ओके, तो इनको घर बनाने के लिए हम लोग कुछ स्टेम जो बुशेस होती हैं, ब्रांचेस, ट्री की जो ब्रांचेस होती है, ये इनके प्लेस पे रख देते हैं, जिस पे ये लोग चढ़ के, ठीक है, जिसके ब्रांचेस पे ये लोग चढ़ के और अपना ककून्स बनाते हैं। ओके, यस। सो देन ये ककून्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह से हम लोग सेरीकल्चर करते हैं, मतलब कि जो ग्रोइंग है, जो ब्रीडिंग है, जो हम लोगों को चाहिए सेरीकल्चर, वो चीज़ें की जाती हैं। ओके, यस। Then we have processing of silk fiber from silk cotton. Okay, so हम लोगों ने पिछले सेक्शन यानी कि इसमें हम लोगों ने देखा था कि एग से हम लोगों को कैसे ये मिला, ककून मिला। ओके, अभी ककून से हम लोगों को सिल्क फाइबर कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। ओके, यस। सो हमारे पास ककून है, बहुत सारे ककून हमने इकट्ठा किया। ओके, बहुत सारे ककून हमने इकट्ठा किया और इसके अंदर जो है ये थ्रेड जो इंसेक्ट है वो बैठा है अंदर। ओके, जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर बैठा है। ओके, यस। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको मार देंगे। ओके, यस। So first of all, the first process, the step in this processing is to killing the insect, that is the killing the this pupa or the caterpillar. Okay, so how we will kill them? So what we do, we take water. Okay, we take water and we put this all the this cocoon in that water. Okay, then we boil it. Okay, then we boil it. Okay, then we boil it. So when we boil this water, the insect inside it, they will die. Okay, they will come out, they will die. Okay, yes. Then what we will do, we will dry it. Okay, we will dry it, we will separate the insects from their cocoon. Okay, yes, and then we will brush it. Okay, then we will dry it, then we brush it. Okay, सो अगर इसमें कोई भी वेस्ट अगर वेस्ट रहता है जो ख़राब हो गया रहता है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यस। देन जो ककून होता है, जो ककून होते हैं, सिंस एक ककून जो होता है एक ऐसे एक ही थ्रेड, स्टार्टिंग में एक ही थ्रेड होता है और एक थ्रेड ही को वो राउंड मूव कर करके एक पूरा जो ये ककून होता है वो बना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक इसमें से जो स्टार्टिंग का थ्रेड होता है, एक एंडिंग का थ्रेड होता है, फिर इसका एक स्टार्टिंग, इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग, तो कुछ 4-5 ककून्स के स्टार्टिंग और एंडिंग थ्रेड को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, फाइबर को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रील पे वूंड करते हैं। ठीक है, एक रील जो होता है इसके पे हम लोग लपेट देते हैं। ठीक है, यस। सो इस पर लपेट देते हैं और इसके बाद ये हमारा तैयार हो जाता है। ये जैसे इसको हम लोग इस पर लपेटते हैं, ये अनवेव होते जाता है, ख़त्म हो जाएगा, फिर ये वाला स्टार्ट होगा, फिर ये वाला, फिर इसको ऐसे से करके हम लोग करते हैं। ठीक है, यस। देन द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज़ दैट in processing of sericulture, okay,
not all the cocoons are boiled, not all the insects are killed. Okay, पूरे किल कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बचेगा. ओके, सो some cocoons are kept. Okay, some cocoons are kept. Okay, so that they can grow. Okay, और जब भी वो ककून को हम लोग रख लेंगे, उनको नहीं मारेंगे, नहीं बॉयल करेंगे, सो वो उसके अंदर रहेंगे जो कैटरपिलर है, और वो अब उसके अंदर आराम करेंगे, रहेंगे, और जब वो और बड़े हो जाएंगे फिर वो उसको काट के, इसको खा के, ये जो फाइबर उन्होंने बनाया इसको काट के ये बाहर आ जाएंगे. फिर ये नए अंडे देंगे और नए अंडे देंगे. ठीक है, और फिर वो अंडों से फिर नए कैटरपिलर निकलेंगे. ठीक है, यस. फिर ये अंडों को हम लोग प्रोसेस करेंगे, फिर इनसे ऐसे हम लोग को बहुत सारे ककून मिलेंगे. ठीक है, यस. देन प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर. अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो ककून है इससे हम लोगों ने एक थ्रेड सिल्क फाइबर मिला. अब ये फाइबर इतना मजबूत नहीं होता है कि इससे हम लोग कोई कपड़ा बुन सकें या किसी यूज़ में ला सके, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है, डेलिकेट है. ओके, सो इसके लिए अब ये जो नॉर्मल एक रॉ हम लोग को सिल्क फाइबर मिला है, इसको सिल्क फाइबर को अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, सिल्क थ्रेड में. जो थ्रेड है मजबूत एक धागे में हम कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं. ओके, सो ट्विस्टिंग ऑफ 2 or more थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड थ्रोइंग. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि बहुत सारे ककून से एक लंबा सा थ्रेड ये सिल्क फाइबर बनाए, एक और सिल्क फाइबर, एक और सिल्क फाइबर, ये तीनों को मिला के हम लोगों ने इसको ट्विस्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा. ठीक है, और उसको बोलेंगे थ्रोइंग. ओके, सो ट्विस्टिंग ऑफ 2 or more थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड थ्रोइंग. अभी ये जो थ्रोइंग है इतना सिंपल नहीं है, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. ओके, सो थ्रोइंग कैन बी डन to produce 4 type of silk thread. Okay, so first is organzine, then crepe, then tram, then thrown single. Okay, अभी इसमें क्या क्या फ़र्क है हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे. so pay attention. organzine में क्या होता है, organzine twisting raw silk and then twisting 2 or more in opposite direction. ओके, इसमें क्या होता है कि जितना मान लो 2-3 हम लोगों ने एक रॉ सिल्क ले लिया और इसको किसी एक डायरेक्शन में, मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबको रोटेट ट्विस्ट किए. सो एक एक को पहले ट्विस्ट करते हैं एक डायरेक्शन में. ओके, फिर 2 और या 3 को एक साथ मिला के, पहले हम लोगों ने सबको ये डायरेक्शन में ट्विस्ट किया था, अभी सब मिला के साथ में अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे. ठीक है, यस. ओके, देन अपोजिट डायरेक्शन, देन 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर. ओके, और 1 सेंटीमीटर इस तरह से ट्विस्ट करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में ये 1 2 3 1 2 3 ऐसे 4 टर्न हो. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किसी थ्रेड को ट्विस्ट करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट आ जाता है. ठीक है, तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर में इस तरह से ट्विस्ट करते हैं कि इसमें 4 टर्न हो. ओके, टर्न. ओके, 4 घुमाव. देन क्रेप में सेम सिमिलर होता है कि हम लोग पहले ये सबको एक डायरेक्शन में ट्विस्ट करें, फिर सबको 2 3 4 5 को मिला के अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दें. लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें ट्विस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि 60 to 32 टर्न्स, मतलब इतने छोटे में इतने ज़्यादा इसको ट्विस्ट कर देते हैं कि एक ही में बहुत ज़्यादा ही टर्न हो जाता है. ठीक है. देन ट्रैम में क्या होता है, 2 or more रॉ सिल्क इन एनी वन डायरेक्शन. ओके, सो 2 या 3 या 4 को हम लोग पहले एक साथ लेके और सबको एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट कर देते हैं. पहले अलग अलग ट्विस्ट नहीं करते, दो सबको साथ में लेके वी टेक ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड देन वी ट्विस्ट इन एनी वन डायरेक्शन. ओके, यस. देन इसमें टर्न का जो नंबर होता है ये 8 to 12 टर्न होता है पर सेंटीमीटर. तो इस तरह से होता है कि जो ऑर्गेन्जीन होता है उससे ज़्यादा होता है और क्रेप से थोड़ा कम होता है. ओके, देन थ्रोन सिंगल इंडिविजुअल रॉ सिल्क. ओके, सो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो रॉ सिल्क है उसको हम लोग ट्विस्ट कर देते हैं
ट्विस्ट कर देते हैं। ओके, और जो टर्न होता है, नंबर ऑफ कितना कितना टर्न चाहिए, वो डिपेंड करता है कि हमको कहाँ पे उसको यूज करना है। ठीक है, यस। ओके, सो जनरली जो हम लोग कपड़े बनाते हैं इन वाइल मेकिंग द फैब्रिक, FABRIC, फैब्रिक मतलब होता है जो कपड़ा, और फाइबर मतलब होता है जो एक धागा। ओके, यस। ओके, यस। सो जो हम लोग कपड़े बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो लॉन्ग लॉन्ग धागे होते हैं उसमें जो ऑर्गेन्जीन जो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला था, वो ऐसा, ये जो लॉन्ग लॉन्ग होता है इसको नाम होता है रैप। तो जो रैप है वो यूज होता है ऑर्गेन्जीन, और जो वेफ्ट होता है, जो लेंथ बेथ ऐसे यूज होता है, जो फिलिंग के लिए यूज होता है। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, यू हैव लर्न दिस इन 6th क्लास। ओके, यस। सो दिस इज दिस वेफ्ट, ओके, इसको वेफ्ट बोलते हैं। तो और ये वेफ्ट यूज होता है, जो ट्रैम वाला जो होता है फाइबर, वो यूज होता है जो वेफ्ट। ओके, यस। देन जो ट्रैम है और थ्रोन सिंगल है, इससे कुछ अलग तरीके के फाइबर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि क्रिंकी फैब्रिक्स जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं क्रेप से, और जो शेयर सिल्क फाइबर बनता है वो बनता है थ्रोन सिंगल से। ओके, यस। Okay, then we have some wild silk. Okay, so it is not always we get the silk only from domesticated. Okay, sometimes we get this silk from produced by the undomesticated silkworm. Okay, like those cocoons which we get from the forest. Okay, yes, forest. Okay, which we have not reared them. Okay, yes. So they are different in color, they are different in texture. Okay, and but since we are not rearing them, so what happen, these cocoons sometimes they are chewed, they are eaten by the insects. Okay, so क्या होता है, सिंस एक ही धागा ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके एक ककून बनता है, अगर वो कोई इंसेक्ट यहाँ से खा जाएगा तो ये जो सर्कल का जो टर्न है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो ये कई छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा। ओके, यस। सो ये प्रॉब्लम होता है कि फिर वो जो अनडोमेस्टिकेटेड जो ककून मिलता है वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। ओके, इतना लॉन्ग उसका फाइबर नहीं बन पाता है। ठीक है, यस। देन वैराइटीज़ ऑफ सिल्क बेस्ड ऑन सम मॉथ स्पेसिस। ओके, सो जो कीड़े होते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं, इनकी भी कुछ वैरायटी होती है, और उनके वैरायटी के बेस पे जो सिल्क वॉर्म बनता है, जो ककून बनता है, वो डिपेंड करता है। ओके, यस। सो इसकी कुछ वैरायटी है, लाइक एरी सिल्क, देन तसार सिल्क, देन मुगा सिल्क. Muga silk you might have heard, it is very famous. Okay, so the Muga silk is found in Brahmaputra Valley. Okay, so Brahmaputra Valley in Assam and Myanmar region. Okay, so our eastern part of our country. So here is Bangladesh, so here is Arunachal Pradesh, here is Assam. Okay, so somewhere here is Brahmaputra. Okay, yes, so here some region here in Myanmar and here in Assam. Okay, yes. Then Muga silk is the strongest natural fiber. Okay, and the fabric which is made from this it's long lasting. Okay, yes. Then uses of silk, since the silk are lightweight and luster. What do you mean by luster? Means they reflect light, they shine. Okay, that is called luster. Okay, then they are soft, they are elastic. Okay, yes. And then they are highly strong in tensile strength. If you will pull it, okay, they will not break. Okay, yes, that is called tensile strength. And then the fabric, the cloth which are made from the silk, they keep our body warm in winter and cool in summer. Okay, so you can think how it is helpful. Okay, yes. Then the dresses made from this silk fiber, they are very expensive. Okay, and these dresses are made for both men as well as women. Okay, and these dresses are being worn at special occasions. Okay, yes. इन इंडिया मोस्टली जो साड़ी होती हैं और जो स्कार्फ होती हैं, सो लेडीज़ के जो गारमेंट जो क्लोथ्स हैं ज़्यादा इससे बना जाते हैं. ओके, यस.
देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन पैराशूट. ओके, सो पैराशूट जो आपने देखा होगा कभी, जो इस तरह से कुछ पैराशूट होते हैं. ओके, so this is a parachute. Okay, bicycle tire, then bulletproof jacket, and then non-observable sutures in surgery. Okay, what do you mean by sutures? so जो ऑपरेशन किया जाता है और जो कहीं पे कट जाता है या फट जाता है, सर्जरी होती है, तो उसको सिलने के लिए जो थ्रेड यूज होता है वो एक्चुअली होता है सिल्क. ओके, यस, सो दीज वर सम यूजेस. सो thank you so much. I hope you will have understood. If you have any doubts, please ask, and if you have any suggestions to improve it, you can write in the comment box. Okay, thank you so much. Stay healthy, stay fit, keep studying.